From a very early age, being a boy or girl defines out identity. Society assigns and expects different roles for boys and girls. Societies makes clear distinction between boys and girls from a very young age. So here is a story, listen it carefully. And Jacob are the same age. They grew up in the same village. Growing up, they learned different roles for men and women. Mele helped her mum with cooking, cleaning, and childcare, while Jacob helped with outdoor work. He has more free time. Their rigid views of masculine as strong and protective, and feminine as caring and serving, were formed. Jacob learns that anything feminine is associated with weakness. He is teased if he shows emotion, and told he kicks like a girl if he plays poorly. Jacob learns that women are valued less, boys are better than girls. Mela learns that she can't do everything the boys are allowed to do. So students, what you listened in the story? What? The society in which we grow up teaches us what boys and girls should do. It tells us what kind of behavior is acceptable for boys and girls. From a very beginning, it assigns different roles to boys and girls, preparing them for their future roles as men and women. The things which a girl or boy is allowed to do are not just controlled by the biological factor, they are based on their gender. हम अपनी सोसाइटी में बहुत पहले से देखते आ रहे हैं एक लड़के और लड़की में क्या भेदभाव किया जाता है। लड़के को ज़्यादा पावरफुल समझा जाता है और लड़की को ये समझा जाता है कि वो कमज़ोर है, सिर्फ घर में रखने के लायक है। Our understanding of gender is often based on the family and society in which we live. It is often related to biological distinction between boys and girls. It leads us to think that roles played by men and women are fixed or natural. It means ये सिर्फ हमारी सोसाइटी की देन है, क्योंकि सोसाइटी में ही हमारी सोच को सिर्फ ऐसे बना दिया जाता है और जहाँ बॉयज़ और गर्ल्स में फ़र्क दिखने लग जाता है और ये सोचा जाता है कि जो मैन और वीमेन का रोल है ये नेचुरल है और फिक्स्ड है। बट नो, जेंडर is thus a socially acquired trait and describes the difference between men and women based on their social role or behavior expected by the society. Sex, on the other hand, refers to the biological differences between men and women. So now student, this is our next chapter and the chapter is gender and gender inequality. Okay, what we read in this chapter, let we discuss. First of all, let we understand what is the meaning of gender. Before going about the chapter, it is very necessary to understand the meaning of gender. So gender means differences between difference between men and women based on their social role or behavior. Got it? Different gender means मैन और वीमेन के बीच जो डिफरेंस है वो किस पर आधारित होना है? सोशल रोल की, समाज में उनकी का क्या रोल है और बिहेवियर की, उनका कैसा बिहेवियर है और उनके साथ कैसा बिहेव किया जाता है. सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ जेंडर. द नेक्स्ट वर्ड इज हेयर जेंडर and equality. Inequality. So what is the meaning of gender equality, students? So means an unequal treatment, unequal
equal treatment given to individual based on their gender. Is that clear? जेंडर इनइक्वालिटी मतलब कि मैन और वीमेन के बीच जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उस पर भेदभाव किया जाता है. इट मीन्स इक्वल नहीं होती चीज़ें, अनइक्वल रखा जाता है. किसके बीच में? मैन एंड वीमेन. इज दैट क्लियर? सो अब यही हमारा चैप्टर है 4th एंड द चैप्टर नेम इज जेंडर एंड जेंडर इनइक्वालिटी. आप जेंडर समझ गए होंगे. लड़के और लड़की को जो डिफरेंस है उसको बोला जाता है जेंडर. और जेंडर इनइक्वालिटी मीन्स दोनों के बीच जो भेदभाव किया जाता है, वो चाहे सोशल रोल हो या बिहेवियर हो या जॉब में हो, उसी को बोला गया जेंडर इनइक्वालिटी. ओके, सो here is given some learning objective that we will read in this chapter. So first one is given gender inequality. Gender inequality. The second one is given gender stereotype. Next, gender discrimination, and the next one impact of gender inequality, and the last one government role. Okay, so these are the learning objectives that we will read in this chapter. So let's start, students. Societies make clear distinctions between boys and girls from a very young age. बच्चों में हमारी सोसाइटी क्या कर रही है, जब वो छोटे होते हैं वेरी यंग एज से ही उनमें क्या करती है, अंतर जो है वो दिखाने लग जाती है. वो कैसे? द बर्थ ऑफ ए बॉय इन द फैमिली इज़ अ मैटर ऑफ जॉय. ओके, जब एक लड़के का जन्म होता है तो फैमिली में क्या होता है, बहुत ही खुशी छा जाती है. बट द बर्थ ऑफ अ गर्ल डज नॉट गिव द काइंड ऑफ हैप्पीनेस. क्या एक लड़की के जन्म पर भी वो इतने खुश होते हैं? These distinctions are quite obvious even in the small day-to-day things. For example, the way girls should dress or talk or the games they should play. It is okay for boys to be naughty, but girls are expected to be more obedient and submissive. Grown-up boys are allowed to stay out longer than their sister. लड़के को भी परमिशन मिलती है ज़्यादा टाइम तक बाहर रहने की. क्या एक लड़की को मिल पाती है? Even the toys that they are given to play with are different. और जो उनको टॉय भी दिए जाते हैं एक लड़के को और एक लड़की को, वो भी डिफरेंट होते हैं. कैसे? While boys are usually given cars to play with, but girls are given dolls, kitchen set and toy furniture set. Do you think the girls would not have enjoyed playing with cars? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? क्या लड़कियां नहीं खेल सकती कार से? और क्या लड़के डॉल के साथ और किचन सेट के साथ नहीं खेल सकते? वाई? ऐसा क्यों है? These are typical examples of gender stereotypes. ये सभी के सभी किस बात का एग्जाम्पल हैं? जेंडर स्टीरियोटाइप्स. अब ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स होता क्या है? सो लेट वी डिस्कस. Stereotypes. So the meaning of stereotype is a preconceived notion or idea which may
not be true. It means, stereotype means एक ऐसी धारणा बना लेना समाज में बहुत पहले से ही बनती आ रही है, जो प्री कंसीव्ड मीन्स नोशन मीन्स एक ऐसी धारणा बना लेना जो कि सही नहीं होती। ओके, क्या है कि हमारी सोसाइटी में बहुत पहले से ही लोगों का मानना रहा है और वे अपने दिमाग में एक चीज़ बिठा लेते हैं कि लड़कियों के लिए क्या ठीक है और लड़कों के लिए क्या ठीक है। ओके, ज़्यादातर उनके दिमाग की सोच में लड़कियों के कामों पर पाबंदी लगाई जाती है और लड़कों को छूट दी जाती है। सो इसी बात का क्या है मीनिंग, स्टीरियोटाइप। इज दैट क्लियर? और ये चीज़ें क्या है, विच मे नॉट बी ट्रू। जरूरी नहीं है कि वो चीज़ें ठीक ही हों। जो काम लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं। ओके, और जो काम लड़कियों के लिए दिए गए हैं उन कामों को लड़के भी कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? और जेंडर स्टीरियोटाइप में क्या है, सच एज द बॉयज नीड टू बी स्ट्रॉन्ग। और इसमें क्या माना गया है, बॉयज नीड टू बी स्ट्रॉन्ग एंड टफ। ओके, एंड दे शुड प्ले आउटडोर गेम्स लाइक क्रिकेट एंड फुटबॉल। वो खेल सकते हैं, वो स्ट्रॉन्ग हैं, बाहर जाकर वो क्रिकेट खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं। बट द गर्ल शुड प्ले, लेकिन इसमें क्या बोला गया है, जो गर्ल्स हैं शुड प्ले इंडोर गेम्स विद डॉल्स। लड़कियों को बाहर जाने की छूट नहीं दी जाती, सिर्फ उनको बोला गया है कि वो घर पर ही रहकर डॉल के साथ खेल सकती हैं। वीमेन आर फिट फॉर कुकिंग, और इसमें क्या बताया, ये क्या धारणा बना रखी है सबने कि वीमेन है जो वीमेन आर फिट फॉर कुकिंग। ये सभी के सभी एग्जाम्पल है स्टीरियोटाइप के। ये एक दिमाग में जो सोच बिठा रखी है सबने, वो इस बात का एग्जाम्पल है। ओके, एंड हाउस होल्ड वर्क और दैट women's are fit for cooking or household work. Okay, but okay, this picture shows the women are fit for cooking in a household work or that it is the man, और एक वो man ही है who provide food and shelter for the family, are ways of giving a hint to the children about their specific roles when they grow up to be men and women. ये बहुत पहले से उनके दिमाग में बिठा दिया जाता है। जब एक लड़का और लड़की पैदा होते हैं तो उनके दिमाग में ये बिठा दिया जाता है कि उनके स्पेसिफिक रोल क्या होंगे सोसाइटी में, कि लड़कियां सिर्फ घर पे रहेंगी, खाना बनाएंगी, और जो मैन होंगे, जो लड़के होंगे, वो क्या करेंगे, अपनी फैमिली के लिए फूड प्रोवाइड करेंगे और शेल्टर, उनके रहने का घर का इंतजाम भी सिर्फ लड़के ही कर सकेंगे। ये सिर्फ एग्जाम्पल है स्टीरियोटाइप के, जो बहुत पहले से ही चीज़ें चलती आ रही हैं और हमारे आने वाली जनरेशन के दिमाग में ये चीज़ें बिठा दी जाती हैं। और इसको कौन बिठाता है, हमारी सोसाइटी। समटाइम्स दीज थिंग्स बिकम सो डीप रूटेड दैट दे इवन इन्फ्लुएंस द कैरियर्स दे चूज इन लेटर लाइफ। और ये क्या है, कैरियर पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं चीज़ें। And the student gender stereotypes can also affect men because sometimes they cannot take up the profession like dance, nursing or cooking even if they want. Those things are changing in urban areas, in rural areas, and in many households. There is a clear-cut divide between the gender-based role of men and women. शहरों में तो ये चीज़ें धीरे धीरे बदलती जा रही हैं, लेकिन गांव में ये बिल्कुल ठोस रूप से चीज़ें जड़ पकड़े हुई हैं। फैमिली इन्वायरमेंट मेक्स अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन देयर जेंडर रोल्स. Children adopt in life because what children see in the family and what family expects from them stay deep rooted in their minds. It means
हमारे फैमिली का भी जो इन्वायरमेंट होता है वो भी जेंडर रोल में बहुत ही मेन रोल प्ले करता है। कैसे? बच्चे जो भी चीज़ें सीखते हैं वो ज़्यादातर अपने परिवार से सीखते हैं, और उनको क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं और क्या क्या कैसा वो बिहेव करते हैं, ये बात बहुत मायने रखती है। अब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, here is given the word gender discrimination. So students, I already told you what is the meaning of gender: difference between men and women based on their social role and behavior. And here is a given discrimination. So what is the meaning of discrimination? Unfair treatment of a person or group of person. Got it? It means उनके साथ हर काम में भेदभाव किया जाना, हर चीज़ में अनफेयर ट्रीटमेंट किया जाना। और यहाँ पर बात कर रहे हैं हम जेंडर की, तो किन के बीच में? बॉयज़ एंड गर्ल्स, men and women। ओके, जब वो बच्चे होते हैं तब से ये डिस्क्रिमिनेशन चलता है सोसाइटी में, बड़े हो जाते हैं तब भी ये चलता रहता है। अब स्टूडेंट, इसमें होता क्या है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में? मोस्ट सोसाइटीज वैल्यू मैन एंड वीमेन डिफरेंटली। दो वीमेन हैव स्टार्टेड वर्किंग आउटसाइड एंड अर्निंग मनी, the main responsibility of doing household work and taking care of the family, especially looking after children or the elderly and sick members, lie with women. It means क्या है? अगर एक औरत women बाहर काम करने जा रही है, अगर वो पैसा कमा रही है, वर्किंग आउटसाइड, काम कर रही है बाहर और पैसा कमा रही है, अर्निंग मनी, फिर भी उसी की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी कि वो ही क्या करे? क्या करे? वो ही क्या करे? घर के काम करेगी, डूइंग हाउस होल्ड वर्क। वही क्या करेगी? घर के काम करेगी एंड टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली। चाहे वो काम करके कितनी भी थकी हारी आए, या उसको कोई भी प्रॉब्लम हो, या कुछ भी उसको प्रॉब्लम हो, समस्या हो, बट वो अगर बाहर भी काम करने जाती है और साथ के साथ घर के लिए पैसा भी ला रही है, तो वो घर को भी देखेगी, घर के सारे काम भी करेगी। सो इससे क्या होगा? इनफैक्ट द नंबर ऑफ आवर्स वीमेन स्पेंड वर्किंग इज मच मोर देन मैन, as they have double burden of work, working outside as well as at home. It means काम करने में उसके नंबर ऑफ आवर्स ज़्यादा होंगे। ओके, कैसे? बाहर का भी काम करेगी आउटसाइड, और घर का भी काम करेगी इनसाइड वर्क। अब ये जब दोनों की दोनों चीज़ें मिल जाएंगी तो क्या होंगे? नंबर ऑफ आवर्स is much more than the man. Okay, is much more than the man. Got it? और इससे क्या होगा? डबल बर्डन जो वीमेन पर है वो क्या होगा? डबल बर्डन of work. Okay,
The work and the role played by women is given less importance than the work or role played by man. जितना वो काम करती है फिर भी उसके काम की सराहना कोई नहीं करता, और उसके काम को इन कंपैरिजन बिटवीन मैन की तुलना में उसके काम को बहुत ही कम इम्पोर्टेंस दी जाती है. इनफैक्ट द वर्क दैट वीमेन डू इज़ इनविजिबल, जबकि उसका सारा का सारा काम सभी को इनविजिबल लगता है. सिंस द हाउस होल्ड चोर्स डू नॉट ब्रिंग इन एनी मनी, द वर्क दैट वीमेन डू विद इन द होम इज नॉट गिवन मच क्रेडिट और इम्पोर्टेंस. ओके, एंड नाउ इम्पैक्ट ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी. क्या इम्पैक्ट पड़ता है जेंडर इनइक्वालिटी से? आप देखो, जो सेक्स रेशो है, इट मीन्स gender inequalities have an impact on India's sex ratio. Preference for male child leads to many cases. It means क्या है, इंडिया में किसको प्रेफरेंस दी जाती है? मेल चाइल्ड को. प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड, लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है. टू मैनी केसेस ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड, और इससे क्या हुए? टू है यहाँ पर मेन जो रीज़न है. वन इज़ फीमेल इन्फेंटिसाइड and the second one is female foeticide. Okay, so what is the meaning of female infanticide? The killing of female baby. इट मीन्स पहले ही जांच करवा ली जाती है कि लड़का है या लड़की है. अगर लड़का है तो उसको जन्म दिया जाता है, और लड़की है तो उसको मार दिया जाता है. सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड. एंड द सेकेंड वन इज गिवन देयर, फीमेल फोएटिसाइड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? डिस्ट्रॉइंग the female child in the womb itself. It means लड़की को पैदा होने से पहले ही मार देना. ओके, ये बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी पर, जिससे क्या है, जो सेक्स रेशो है वो बिटवीन द बॉयज़ एंड गर्ल बहुत ही बेकार है, बहुत ही ख़राब है. यहाँ पर क्या है, लड़कियों को के जन्म देने में बहुत ही गलत सोच रखते हैं और लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है. ओके, और आप देख सकते हैं कि हमारे हरियाणा में भी लड़कियों की जो संख्या है वह बहुत ही कम है. यहाँ क्या होता है, अगर लड़की जन्म भी ले लेती हैं तो उनको मार दिया जाता है. बहुत सी हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें चली हुई है, या उनको जन्म लेने से पहले उनको मार दिया जाता है. ओके, फीमेल इन्फेंटिसाइड मतलब किलिंग ऑफ फीमेल बेबी, लड़की को मार देना. एंड हेयर डिस्ट्रॉइंग द फीमेल चाइल्ड इन द वॉम इटसेल्फ, और पैदा होने से पहले ही गर्भ में उनको मार देना. एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेक्स रेशियो? Is the number of females. Sex ratio is the number of female per every 1,000 males in a given place.
ये एक नंबर को बताते हैं, प्रॉपर जो है नंबर बताते हैं कि 1000 मेल पर कितनी फीमेल्स हैं यहाँ पर। ओके, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, देखो सर्वे किया था 2011 में, उसमें क्या था, जो सम स्टेट्स हैव shown a decrease in the sex ratio. It means कि सर्वे हुआ था, उसमें क्या बताया है कि बहुत सी ऐसे स्टेट है जहाँ पर जो नंबर है बॉयज़ और गर्ल्स का बीच, मतलब बॉयज़ का तो बड़ा है और गर्ल्स का जो नंबर है किसके कंपैरिजन में, बॉयज़ के कंपैरिजन में बहुत ही घटा हुआ था। अगर हम दिल्ली की बात करें तो इन दिल्ली फीमेल सेक्स रेशियो इज़ ऑल्सो 866। अब देखो ध्यान से, दिल्ली में जो रेशियो है 866 किसका मिला है, फीमेल्स का, और 1000 किसका मिला, 1000 पर बात हो रही है यहाँ पर। अब ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर कितनी कमी है, 866 फीमेल और 1000 मेल। अब देख लो यहाँ पर। और हरियाणा, अब हम बात करें हरियाणा की तो यहाँ भी 877, ओके, फीमेल सेक्स रेशियो। और क्या इम्पैक्ट है ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी के, सो द हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड मेडिकल केयर। देखो, द हेल्थ, न्यूट्रिशन कि अच्छा खाना हो जिसमें पूरे के पूरे न्यूट्रिशन मिले, इट मीन्स बैलेंस्ड डाइट, एंड मेडिकल केयर। ऑफ गर्ल्स, स्पेशली इन रूरल एरियाज में ध्यान से देखना है इस चीज को, is given less importance। गांव में लड़कियों की इन सभी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। ओके, एंड द नेक्स्ट वन, एजुकेशन फॉर गर्ल्स। वो कैसी होगी फिर, जब इन्हीं चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया जाता तो एजुकेशन भी कैसी प्रोवाइड होगी। When resources are limited, people choose to educate their sons rather than daughters, as boys are expected to find good jobs and earn for the family. It means resources जो बहुत लिमिटेड होते हैं, it means आप देख सकते हैं कि अगर परिवार की इनकम कम है तो वहाँ क्या करेंगे, लड़के को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है कि वो अच्छे से अच्छे पढ़ाई कर पाए, और लड़की को वो चीज़ें नहीं दी जाती हैं। तो और लड़के से ही क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक बहुत अच्छी जॉब उसको मिले और वहीं सिर्फ परिवार के लिए कमाए। द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इज गिवन लेसर इम्पोर्टेंस। दे आर एक्सपेक्टेड टू टेक केयर ऑफ यंगर सिबलिंग एंड हेल्प विद द हाउस वर्क। और उन्हें सिर्फ बोला कि वो सिर्फ अपने छोटे भाई बहन को संभाले और घर के काम करे। ओके, एंड द स्टूडेंट्स ऑल्सो 2011 में फिर सर्वे हुआ था, उसमें क्या हुआ था, द लिटरेसी रेट। अब लिटरेसी रेट क्या था इंडिया में, लिटरेसी रेट मतलब होता है कि एजुकेशन को हासिल करना, वो क्या था बॉयज़ में। अब ध्यान से देखना, बॉयज़ में कितना मिला, 82.14%, और गर्ल्स, कंपैरिजन ऑफ बॉयज, गर्ल्स में कितना मिला, ओनली 65.46%। कई बार क्या होता है, लड़कियां बहुत ही इंटेलिजेंट होती है लेकिन घर में बहुत से रिसोर्सेज की कमी की वजह से वो अपनी एजुकेशन नहीं हासिल कर पाती हैं और वो ऐसे ही पीछे रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि माइंड में ये चीज़ें सेट कर ली गई हैं कि सिर्फ बॉयज़ ही हैं, वो ही हमारे फ्यूचर अच्छा बना सकते हैं।
and the next one is also given here, wage discrimination. Wage discrimination, और ये भी there is a wage discrimination between man and women. और next क्या है, promotion. To senior पोजीशन, इसका क्या मतलब है, अब लिसन. प्रमोशन टू सीनियर पोजीशन. Even in promotion to senior position, men are given preference as it is felt that the female employee will be preoccupied with their families and children. और यहाँ पर भी जो प्रमोशन होती है उसमें किसको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, मैन को. ओके, सो स्टूडेंट्स, अब आपने देखा होगा कि हमारी सोसाइटी में ये बहुत ही गलत धारणा बनी हुई है. किनके बीच में, लड़के और लड़कियों के बीच में. अभी हम सिर्फ इसको यहीं तक रीड करेंगे, इन चीज़ों को, और आप भी इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे, इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे. और इन नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी पार्ट 2 वीडियो होगी उसमें हम क्या जो हमारे बचे हुए टॉपिक है हम उसको देखेंगे, उसको पढ़ेंगे. और इसमें क्या देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, गवर्नमेंट्स रोल इन अपलिफ्टिंग वीमेन, कि जो वीमेन की पोजीशन थी है हमारी सोसाइटी में, उस पर उसको ऊपर उठाने के लिए, उसकी पोजीशन को अच्छे से ऊंचे स्तर डेवलपमेंट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको. ओके, सो टिल देन कीप रीडिंग.